اس وقت روزہ اربعین ہے اور ہم اس وقت بین الحرمین کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری بساری ہے. ہماری پشت کے اوپر مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے اور ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے. اور اس کی ہم لائیو فوٹیج آپ کو دکھائیں گے کیونکہ آج اربعین کا دن ہے اور روز اربعین کے مخصوص اعمال انجام دیے جا رہے ہیں. زیارت اربعین پڑھی جا رہی ہے کیونکہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک زیارت اربعین بھی ہے. تو وہ مومن ہی نہیں جو اربعین کے روز زیارت اربعین نہ پڑھے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہر انسان کے ہاتھ میں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی لوگوں کے ہاتھ میں پرچے ہیں اور زیارت اربعین کی تلاوت کر رہے ہیں. جو کر چکے ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں اور حرموں سے تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بالکل اسی طرح جس طرح شب عاشورہ اصحاب امام حسین علیہ السلام قیام حسینی میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے بالکل اسی طرح سے روز اربعین ہے. اور اپنے امام کو گھیر کے چاروں طرف سے دونوں حرموں کو حلقہ کر کے جو زائرین ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں, زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, نوحے اور مرثیے وغیرہ اس پر کریا ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایکسکلوسیو مناظر ہیں جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لائیو پیش کر رہے ہیں کیونکہ روز اربعین اور شدید ترین یہاں پر. جی ناظرین, اس وقت ہم کربلا المقدسہ سے لائیو آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور مختلف اسپاٹس کے ساتھ مناظر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. ابھی بین الحرمین کے مناظر دکھائے آپ کو اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف کے سے ہمارے ساتھ عالم دین جناب قبلہ شیخ یاسین صاحب. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ پیش کریں گے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین مومنات کی طرف سے ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل اہل بیت ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. خداوند متعال جہاں کہیں بھی مومنین اس حسرت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پہنچے ہیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. تو ناظرین یہاں پر زیارت اربعین جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے. اس وقت اربعین کے اعمال کیے جا رہے ہیں. تھوڑی سی اربعین کی جو زیارت قبلہ وارد ہوئی ہے اس کی اسناد کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا. یہ جو زیارت اربعینیہ ہے یہ زیارت اربعینیہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. اور کہ انسان حرم کے ارد گرد ہی موجود ہو دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے کیا وہی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ جو سلسلہ ہے سلسلہ زیارت اربعینیہ کا کہ ایک انسان کربلا معلّہ میں نہیں ہے تو کیا ابھی وہ جس ملک میں بھی ہے جس جگہ پہ بھی ہے کیا کہ وہ زیارت اربعینیہ پڑھے اس کو اجر ثواب ملے. اور جہاں کہیں بھی ہے یہ آل محمد کا اور خدا کا ہمارے اوپر خصوصی لطف ہے. اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں اور اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت عطا کی ہیں. ہم جہاں کہیں سے بھی بیٹھ کر بارگاہ معصومین میں سلام پیش کرتے ہیں تو ہمارے سلام پہنچ جاتے ہیں اور سلام بھی پہنچتے ہیں اور ہمیں جواب بھی مل جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ اٹیچ میں ہیں جن کا آج بھی ہمارا خدا کے ساتھ جو ہے ایک روحانی رابطہ ہے ایک امام کے ذریعے سے. مومن جہاں بھی ہو جس مقام پہ بھی ہو جب بھی اہل بیت علیہ السلام کو پکارتا ہے تو اہل بیت ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کی دعا کو سنتے ہیں اور مومن کے حق میں خصوصی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو اسناد یوم اربعین کی زیارت کے لیے ہیں کیونکہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین کا پڑھنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان صرف کربلا ہی میں پڑھے جو نہیں آ سکا اپنے دور دراز علاقوں میں ہے دوسرے ملکوں میں ہے دوسرے شہروں میں ہے دوسرے قصبوں میں ہے دوسرے دیہاتوں میں ہے دور ہے بعید ہے تو وہیں سے زیارت امام حسین علیہ السلام روز اربعین جو ہے وہ زیارت اربعین کو پڑھے اس کو وہی ثواب حاصل ہوگا جو شخص امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جو ہے وہ پہنچ کر اور زیارت اربعین پڑھ رہا ہے. تو آج اربعین کا روز ہے اور روز اربعین کے کچھ فضائل بیان کر دیجیے. آپ نے برادر بتا دیا کہ ایک مومن کی علامت ہے زیارت اربعینیہ اور مومنین کا یہاں پہ کروڑوں ہاں کا آنا ایک محبت امام حسین میں اتنا سفر کرنا اور یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں عشق امام حسین میں آ رہے ہیں اور اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے یہ سیرت کو واضح کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. یاد رکھنا ہم حسین کے ساتھ دینے والے ہیں اور آج بھی اگر اتنی گرمی اور شدت کے باوجود بھی لوگ گھبرا نہیں رہے بلکہ روزہ امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور مولا امام حسین علیہ السلام
की जो मोहब्बत है, अगर आप देखें और उसको रिवायात के अंदर देखा जाए और मक्तल की कुतुब में देखा जाए, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले जब मौला इमाम हुसैन पहुंचे हैं करबला में, तो मौला ने जब करबला की जमीन को खरीदा है ना, तो ये जो ज़ायरीन आ रहे हैं, इतना सफर कर कर आ रहे हैं और इतना तवील सफर से आ रहे हैं, अपना सब कुछ दुनिया को बैग पे रख कर, हाथ को पीछे छोड़कर करबला की तरफ रुख किया हुआ है। जहां कहीं भी मोमिन बैठा है वो भी करबला की तरफ मुतवज्जे है। जिस जगह पे भी बैठा है, अगर वो करबला में नहीं है लेकिन उसका दिल करबला में है, करबला में है। और एक जुमला जो मैं आपके तवस्सुल से पहुंचाना चाहता हूँ, ज़ायरीन मोमिन याद रखिएगा, करबला आपके आने से पहले मौला इमाम हुसैन ने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया था, आपने आपके लिए इंतजाम कर लिया था। जो मौला की वसीयतें हैं ना, उन दो वसीयतों को देखा जाए, करबला को खरीदने के बाद बनी असद के लोगों को वापस की, कहा कि बनी असद वालों, ऐ कबीले खानदान वालों, और ये जमीन आप वापस रख लो, ये अपने इस्तेमाल में ले लो, लेकिन दो काम लाजमी करना। एक, जो भी मेरा ज़ाहिर आए उसको 3 दिन के लिए रिहाइश देना, खाना देना। और दूसरी बात ये मौला हुसैन ने की कि जो भी ज़ाहिर मेरी जियारत के लिए आए, मजलूम करबला की कब्र का निशान बता देना कि यहाँ इस मकाम पे मजलूम करबला है। ज़ायरीन देखें, अपनी अजमत को देखें, अपने मकाम को देखें, अपने शर्फ को देखें कि कोई इंसान कहीं से भी बैठकर मौला हुसैन की बारगाह में सलाम करता है, इधर से करबला से आवाज जाती है, बता तुझे क्या चाहिए हुसैन से, बता तू क्या मांगना चाहता है हुसैन से। तो ये खसूसी लुत्फ करम है खुदा का, जो आले मोहम्मद के सदके में हम के ऊपर हुआ है और हमारे हिस्से में मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत आई है। सबसे बड़ा हमारे ऊपर करम जो अल्लाह ने किया है, हमारे हिस्से में हुसैन को रखा है, और हम खुदा से और क्या लेते हैं। क्या क्या सॉरी क्या यही वजह है कि जो पूरे अतराफ में हम 1 मील 1.5 मील तक करबला से बाहर चले जाएं, तमाम घर ज़ायरीन के लिए खोल दिए जाते हैं और ये नहीं पूछा जाता कि आप किस मुल्क से हैं, क्या है, ज़ाहिर है घर में तशरीफ लाएं, और जिसमें मेहमान नहीं आता वो बहुत उस पे दिल गिरफ्तार होते हैं कि क्यों नहीं आया। तो क्या ये वही बनी असद को जो ताकीद की थी, उसी की तासीर अंजाम दी जा रही है? मौला इमाम हुसैन के जो जुमलात हैं, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करबला की जमीन को खरीदा, क्यों खरीदा है मौला इमाम हुसैन? क्योंकि पूरी दुनिया मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी, तो मौला हुसैन ने क्यों खरीद ली ये करबला की जमीन? इसलिए कि मौला हुसैन आने वाली नस्लों को जानते थे, कोई ये ना कह सके कि करबला की जमीन जो है जहाँ पे कब्र इमाम हुसैन है बनी असद की है। नहीं, मौला इमाम हुसैन ने खरीद ली थी। आगे आ जाए, आज जो ज़ायरीन इतनी खिदमत कर रहे हैं, आज जो मोमिनीन खिदमत कर रहे हैं, इसका पस मंजर क्या है? ये मौला इमाम हुसैन का जो जुमले हैं, वो आने वाली तमाम कयामत तक नस्लों के लिए बाकी हैं। पिछले दिनों में एक क्लिप देख रहा था कि एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास घर में फकत आटा था, और उसने अपनी मुकम्मल फैमिली को लेकर और सड़क के किनारे आकर उसने रोटियां बनाकर लोगों में तकसीम किया। रो रो के ही जुमला कह रहा था कि मौला मेरे पास तो फकत ये रोटी है, मेरी ये रोटी कबूल कर लेना, अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं आपकी बारगाह में पेश करता, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त है मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। और देखें, मौला हुसैन की बारगाह में जितना कोई किसी को एक पानी का गिलास भी पिला दे तो मौला उसका अजर जाया नहीं करते। मौला अपने बेटे, मैंने उलमा से सुना है, उलमा कहते हैं कि मौला ने अपने बेटे को अली अकबर को कहा था, या बुनैया अली अकबर, जितने भी ज़हर आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी जियारत इमाम हुसैन पे खर्च कर रहे हैं, इनका खर्चा लिख लो, हुसैन दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। जी बिस्मिल्लाह। बट तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो लोग हाथ पैर जोड़ जोड़ कर अपने घरों पर ले आते हैं, अभी हम यहाँ पर करीब में 1 आध दिन पहले की बात है कि हम ट्रांसमिशन दे रहे थे, तो 2 बच्चे वो मुस्तकिल मुझे जो है वो बीच ट्रांसमिशन में ही इंटरप्ट कर रहे थे। भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाहते हैं। हमने ट्रांसमिशन खत्म की तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या वजह क्या है, क्यों क्यों इतने प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारा घर एक गली छोड़ के आगे है और हमारे पास घर में आके रहो। मैंने कहा मेरे पास होटल है, मैं वहाँ पर हूँ। कहा कि नहीं, हमारे घर पे रह ले। तो मैंने कहा हमारे पास कोई ज़ाहिर नहीं है। कहा कि नहीं, हमारे ज़ाहिर आज चले गए, हम चाहते हैं कि अभी 40 तक खाली ना रहे, तो हम आपकी सारी ज़ियाफत करेंगे, हम आपको जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे घर में रहें। तो ये वो जज्बा था, मैंने बड़ी मुश्किल से माजरत की उनसे, तो वो बड़े दिल गिरफ्तार हुए। बहरहाल, तो ये जो जज्बा एक मिसाली जज्बा है, ये हमें पूरी दुनिया में कहीं देखने में नहीं आता, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़ दीन है, मुहाफ़िज़ शरीयत हैं, यब्न ज़मज़म व सफ़ा हैं। इमाम हुसैन सलाम सफ़ीनतुन निजात हैं। इमाम हुसैन सलाम किशात निजात की वो किश्ती है जिस पर सवार हो गया वो यकीनन निजात पा गया। और सवार होने से मुराद जुमला ज़रा बेहतर बयान फरमाएंगे।
सवार होना सबसे पहले जो ज़ियारत अरबैनिया है जिसको आप तिलावत करते हैं, जिस मकाम पे भी हैं, उसमें जुमलात लिखे हुए हैं। और मौला सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मौला फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा मौला हुसैन का नाम उठाएगा वो उसके ऊपर गम तारी हो जाएगा। क्यों गम तारी हो जाएगा? क्योंकि मौला सादिक का भी फरमान है, मौला ने फरमाया था कि मेरे जद हुसैन का फरमान है कि मुझे इस तरीके से करबला में शहीद किया गया, जब भी कोई मोमिन नाम उठाएगा तो वो रो पड़ेगा। आगे आ जाए कि ये जो करबला मोहल्ला है, इस करबला मोहल्ला में आना और ये सफीना निजात की जो निस्बत है मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में, तो इसके ऊपर मौला सादिक का फरमान है। मेरे मौला सादिक से किसी ने सवाल किया था कि मौला ये जो मौला हुसैन के साथ कश्ती का नाम दिया गया है सफीना तो निजात हैं, क्या आप बाकी अहले बैत सफीना निजात नहीं है? तो मौला सादिक ने फरमाया था हम कुल्लुहुम सुफना, हम तमाम के तमाम सफीना निजात हैं। हाँ, लेकिन हम तमाम के तमाम जो हैं वो सफीना निजात हैं, लेकिन सफीनतुल हुसैन असरा व औसा, और जो मौला इमाम हुसैन की कश्ती है वो बहुत बड़ी कश्ती है और उसके अलावा निजात की तरफ तेजी के साथ लेके जाने के लिए तैयार है। इंसान जब हुसैन के साथ अटैच हो जाता है तो फिर उसके सामने मुकम्मल पर्दे ऊपर हो जाते हैं। कोई ये ना कहे कि मैं करबला में आया तो मैं बदल न सका। अगर वो करबला से बदल के नहीं जा सका ना, तो फिर दुनिया में कोई ऐसी दरसगाह, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा मरकज नहीं है जो उसको बदले। करबला तो इंसान की इंसानियत को बदलने का नाम है। करबला तो इंसान को एक मंजिल तक पहुंचाने का नाम है। करबला तो इंसान के लिए एक निजात का जरिया है। हुर की मिसाल मौजूद जी, हुर की मिसाल देख लो, एक लादा में और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे इशारा करके बता दिया था कि हुर, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं जहरा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ। जो भी मेरे साथ अटैच हो गया वो निजात पा गया। हुर के दिल में ये बात बैठ गई थी, जिसकी वजह से देखे वो हुर को ये मकाम मिला। आज जो भी जियारत इमाम हुसैन के लिए आता है तो हुर की जियारत के लिए लाजमी जाता है। और फिर मोहब्बत इमाम हुसैन देखे, नासिर इमाम हुसैन। और फिर जो मौला इमाम, वो तो नुसरत की उसने इमाम हुसैन की, जो मौला हुसैन ने उसकी मदद की है। जो मौला हुसैन ने 10वीं के दिन जब हुर का बेटा गिरता है करबला के मैदान में, तो मौला हुसैन पहले पहुंच चुके थे और हुर के बेटे के सर को झोली में रखा हुआ था, प्यार कर रहे थे। तो हुर को बेटा भूल गया। जब बेटा भूला तो कहा कि मौला आप कितने करीम हैं, मेरे आने में बाप था, मेरे आने में ताखीर हो गई तो आप मेरे से पहले आ गए। तो मौला हुसैन ने जुमला दुखों का भरा हुआ कहा। मेरे मौला हुसैन कहते हैं कि हुर तुझे नहीं पता, जिसका कोई जवान बेटा दुनिया से चला जाता है ना, तो बूढ़े बाप पे बहुत मुश्किल वक्त होता है। वो हुर ने नुसरत की थी, लेकिन जो मदद मेरे मौला हुसैन ने की है, हुर को दुनिया और आखिरत में निजात दी है, और इस दुनिया और आखिरत की निजात में और उसको कामयाबी दी है। आज तक मोमिनीन आते हैं। हुर के सराहने तो पहुंच गए, मगर जनाब अली अकबर के वक्त हुर के बेटे के सराहने तो पहुंच गए, और अपने बेटे के जब सराहने पहुंचे तो कोई सहारा देने वाला नहीं था। उस वक्त यही जुमले कह रहे थे, ऐ कौम शिया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किसी मकाम पे भी बद्दुआ किसी को नहीं की, लेकिन जब अली अकबर के लाशे पे पहुंचे हैं ना, उस वक्त जब अली अकबर का सर उठा के अपनी झोली में रखा है, उस वक्त मेरे मौला हुसैन ने जुमला कहा है, कौम शिया, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को खत्म करे। तूने अब मेरा कितना खूबसूरत प्यारा बेटा करबला की जमीन में उतार दिया। ये हौसला था मेरे मौला हुसैन का। और रुखसार रखा अपने बेटे के रुखसार पर, और रख कर एक जुमला का, अल दुनिया बाद कल अफा, अली अकबर तेरे जाने के बाद तेरे बाप के लिए दुनिया में खाक है। मेरे मौला हुसैन जितने साबिर थे, लेकिन अपने बेटे की जब लाश पे पहुंचे हैं ना, उस वक्त हुसैन जाने और मेरे अल्लाह की बारगाह में कहता है कि मेरा अल्लाह, मेरा एक अकबर है तो लाख अकबर भी मांगे करबला में देने के लिए तैयार है। और ऐसी सीरत और ऐसी हम शक्ल पैगंबर था जिसको करबला के अंदर मौला इमाम हुसैन ने शहीद करवाया दीन की खातिर में। अव्वन अलैया मा नज़्ज़ल बिह बआइनिल्लाह, परवरदिगार तू देख रहा है, जो मेरे कल्ब पे गुजर रही है तू देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सलाम के वो मसाइब हैं जो खत्म ही नहीं हो सकते, यानी उसके अंदर क़िबला इतने पहलू हैं। कल रात जब हम गुफ्तगू कर रहे थे और एक प्रोग्राम कर रहे थे, इसमें छोटी शहजादी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं जनाब करबला आते हैं तो हमारे जहन में जनाब अली अकबर के लिए ढारस होती है कि मौला के पास सो रहे हैं। जनाब अली अकबर मौला के सराने हैं,
जनाब अली असगर उनके एक बाज़ रिवायात में सीने के ऊपर है, मगर छोटी शहजादी जो खराबत शाम में रह गई वो आज तक इमाम हुसैन सलाम से न मिल सकी, वो बिछड़ी ही है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको शाम बाद में जाना था, मगर वो अरबईन से सीधे छोटी शहजादी पास जाते हैं कि अगर पानी ना मिल सका तो फुरात का, एक साहब यहाँ से पानी लेकर गए, फुरात का पानी लेकर गए कि मैं वहां पर जरी पे छिड़कूंगा कि मैं पानी आपके लिए पानी लेके आया हूँ। ये इश्क की इंतहा है। खुदा ने कौम खल्क की और वादा किया वो आपके सामने है, और आज रोज़े अरबईन हो जाएगा। अरबईन की शाम यहाँ पर किस तरह की होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अरबाइन की शाम जो यहाँ के ज़ायरीन कराम हैं, जो अहले इराक हैं, और वो अक्सर ज़ोहरैन की नमाज के बाद अपने वतन वापस चले जाते हैं। जो दूर से मुसाफिर होते हैं वो यहाँ पे ठहर जाते हैं और बार बार जरिए इमाम हुसैन पे जाते हैं। रिवायात में है, मैं एक जुमला मैं आपके तवस्सुल से पहुंचाना चाहता हूँ। आपने कहा कि छोटी शहजादी जो शाम में सो गई है, और दो चीजें हैं। माँ को ना बहुत प्यार होता है औलाद से, माँ जानती है औलाद की तकलीफ को। जब शहजादा अली असगर करबला में शहीद हो गए, मौला इमाम हुसैन ने वसीयत की जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, बहन मेरी बेटी का ख्याल रखना और नमाज तहज्जुद में याद रखना। जब रिहाई मिली है ना अहले बैत अलैहिस्सलाम को, वहां से शाम से जब वापस आ रहे थे तो बीबी रुबाब ने जनाब सकीना की कब्र को नहीं छोड़ा। मौला सज्जाद ने पूछा जनाब ज़ैनब से कि मेरी माँ रुबाब नजर नहीं आ रही, कहाँ पे है? कहा कि सकीना की कब्र पे है। कहा कि उसको कहो कि हमने करबला जाना है। जब ये जुमले कहे हैं ना, और आके कहा कि उठो हमने करबला जाना है, कहा कि मेरी दो फूल थे, एक मौला हुसैन के पास हो गया, एक करबला से चली थी मेरे साथ में, लेकिन वो सफर मुकम्मल ना कर सकी, वो मदीना भी ना जा सकी, वो वापस करबला भी ना जा सकी, वो शाम में सो गई है, मुझे यहीं पे छोड़ दे, मैं यहीं पे रह जाऊंगी, मेरी बेटी जिंदान में तनहा है, मैं यहीं पे रह कर ना जिंदगी बसर कर लूंगी। लेकिन मौला सज्जाद ने कहा कि नहीं, ये परदेश है, यहाँ पे हमारा से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। मजलूमियत की इंतहा हो गई। हुसैन की बेटी थक कर शाम में सो गई, अपने बाबा के सीने तक न पहुंच सकी। और आज तक वो मजलूमा को जब भी कोई बंदा याद करता है करबला में, अली असगर को तो लाजमी सकीना को याद करता है, जब भी कोई याद करता है मौला अब्बास को तो सकीना को लाजमी याद करता है, जब भी कोई मौला हुसैन की शहादत को याद करता है तो बीबी सकीना को लाजमी याद करता है, जब भी कोई सफर करबला को याद करता है तो लाजमी पेश करता है जनाब सकीना सलाम। अगर शहजादी जनाब रुकैया, जिनको हम जनाब सकीना हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कहते हैं, अगर उनके मसाइब को तफसीली उसका मुआवजा किया जाए और देखा जाए कि करबला से कूफे से शाम तक जो वो गई हैं, तो उसमें जिंदा बच जाना का कोई इम्कान नहीं था, जितना जुल्म किया गया। यानी किसी के मुसलसल गले में फंदा पड़ा हुआ हो, क्योंकि उनका कद कम था और बीवियां उनसे कद में ऊंची थी, और एक ही रस्सी से सबको बांध के खींचा गया, और दुर्रे मारे जाएं, तमाचे मारे जाएं उनको, ऊंट की पुष्ट पर, जो कि कितनी सख्त उसकी खाल होती है, खाल उधड़ जाए इंसान की, जब उनके आगे से जो है वो खून जारी हो जाता था, छोटी मासूम बच्ची, तो वो उनको जो पीठ के पुष्ट की जानिब से रस्सी पे बांध देते थे। तो मैं इस पर सोचता रहा कि आखिर ये जिंदा शाम तक पहुंची कैसे। तो मैंने एक रिवायत देखी कि उनसे इमाम हुसैन सलाम ने वादा किया था, जब उन्होंने कहा कि बाबा मुझे मिलने आओगे, तो इमाम ने कहा हाँ, तो उससे खराब है तो शाम में मिलने आऊंगा। मुझे लगा हुजूर कि शायद उस मिलने की आस में जिंदा रहेंगे कि अपने बाप को मिलने। तारीख जो है मक्तल, आलम दीन के जुमले हैं। मक्तल जितना भी करबला के मकातल को लिखा गया है, कुतब के अंदर तारीर किया गया है, और यहाँ तक के मक्तल ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पे जितने जख्म थे उनको भी लिखा है कि ये इतने मौला हुसैन के जिस्म पे जख्म थे, इतनी तलवारों के जख्म थे, इतने नेज़ों के जख्म थे, इतने तीरों के जख्म थे, और इतने पत्थरों के जख्म थे। मौला इमाम हुसैन के जिस्म अतहर के ऊपर लिखा है, लेकिन तारीख दो चीजें नहीं लिख सकी। तारीख
वो चीजें नहीं लिख सकी। एक मौला सज्जाद को ताजियाने कितने लगे हैं सफर में। दूसरी तारीख ये नहीं लिख सकी आज तक कि बीबी सकीना को तमाचे कितने लगे हैं। और ये जो वादा था मेरे मौला इमाम हुसैन का, थके हुए थे मौला सज्जाद, जिंदान शाम में एक दीवार के साथ सहारा लेकर बैठे थे, और बीबी सकीना काफी थकी हुई कुछ देर के लिए ऐसे सहारा लेके आराम किया, बाबा खाम में मिले। जैसे बाबा खाम में मिले और तड़पी है बीबी सकीना जिंदान में, तड़प के कहती है बाबा बाबा। जब ये जुमले सुने हैं मौला इमाम हुसैन की बेटी ने, जब तड़प कर जिंदान में रोना शुरू किया है, मौला सज्जाद के पास गई हैं, कहा कि भाई सज्जाद, मैंने अभी बाबा को देखा है, सहारा दिया। सहारा देने के बाद ये बात पहुंची, कहा कि हुसैन का सर दिया जाए। लेकिन करबला की थकी हुई शहजादी, आप जानते हैं, आपने सफर किया, हर साल आप आते हैं और हर साल आपके तवस्सुल से कितने मोमिनीन इस इबादत में शामिल होते हैं। और ये एक ऐसा सदका जारिया है, जहां कहीं भी मोमिन बैठकर आपके तवस्सुल से मौला हुसैन की बारगाह में सलाम करे तो इसका अजर आप नहीं दे सकते, ना ही दुनिया में दे सकते हैं, ना ही आखिरत में दे सकते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में जब भी मोमिन थक जाता है तो लोग उनके पाँव को दबाते हैं, अगर कोई जख्म हो जाए तो फिर मरहम लगाते हैं। लेकिन मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक रास्ते में बैठे हैं तो बीबी सकीना से मंसूब जुमला है। बीबी सकीना, मौलाना सज्जाद ने पाँव फैला के बैठे थे और बीबी सकीना साथ में आती हैं, आके कहती हैं कि भाई सज्जाद पाँव क्यों फैला के बैठे हैं। कहा सकीना, आप जानती हो सज्जाद के पाँव जख्मी हैं, जख्मों में जख्म है, और जब भी सज्जाद जमीन पे कदम रखता है ना तो जमीन का रंग सुर्ख हो जाता है। और इस आलम में सफर किया है आले मोहम्मद के बच्चों ने, और आले मोहम्मद ने फकत बकाए दीन के लिए और बकाए शरीयत के लिए और बका इलाही के लिए, ये सब कुछ जो आज हमारे पास खजाना तौहीद है, खजाना इमामत है, खजाना नबूवत है, खजाना रिसालत है, ये जो अम्बिया की मोहब्बत है, ये जो रसूलों की मोहब्बत है, ये जो इमामों की मोहब्बत है, ये तवस्सुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और आले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है। आज हम सर उठा के चल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं हम हुसैनी हैं और हुसैन के साथ रहने वाले हैं। हमारे दुनिया में भी मालिक हुसैन है और आखिरत में मालिक हुसैन है। अल्लाहु अकबर। आज जो ये बस्ती बसी हुई है मिस्ल शब आशूरा के, ये मिस्ल शब आशूरा के, और फिर उसी शब आशूर के बाद करबला के बतन के अंदर शाम गरीबा भी हुई, अंधेरा छा गया, उदासी छा गई, फातिमा का चांद गुरूब हो गया। आज जब ज़ायरीन चले जाएंगे, मुकब समेट जाएंगे, कैसा मंजर लगेगा? एक फिर उदासी का एक मंजर है। आज लोग अपने गमों का गम लेकर मौला हुसैन की बारगाह में आए, और आपने देखा होगा, और जब भी कोई जहर जब भी कोई आता है करबला में, जब वो करबला को छोड़ता है तो उसकी रूह यहाँ पे रह जाती है। उसका ढांचा चाहे कहीं भी बाड़ी चली जाए, लेकिन उसकी रूह करबला में होती है। और इस रूह का ये असर होता है जब भी वो अपने वतन पहुंचता है, जब भी वो अपने घर में पहुंचता है, अपने मुल्क में पहुंचता है, तो उसकी रूह जो है वो करबला में होती है। उसकी रूह करबला में तड़प रही होती है, कहता है कि काश कि मैं दोबारा करबला में पहुंच जाऊं, मेरा कोई लहजा भी मौला हुसैन से दूर ना रहे। फौजन अजीमा, ये वो मर्तबा है, ये वो शान है, ये जो मोहब्बत है, ये फकत खास मोमिनीन के कलूब के लिए है, किसी दुश्मन के लिए मोहब्बत नहीं है। ये अल्लाह का हमारे लिए एक बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें विलायत भी दी है और आजादारी भी दी है, और हमारे हिस्से में करबला को रखा है। अच्छा, चंद जो है वो मिनट हमारे पास बाकी है, और जो है वो यहाँ पर अहले इराक कहते हैं कि अबदुल्लाह यदारा मा निंसा हुसैना, तो थोड़ी सी बात करें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है इसको कभी नहीं भूलेंगे, और जब तक हम रहेंगे तो ये मोहब्बत हुसैन हमारे पास है, और ये अमानत बीबी ज़हरा है, और इंशाल्लाह ये बाकी रहेगी। और हम इंशाल्लाह, और मोमिनीन जहाँ कहीं भी इस वक्त मौजूद हैं, जिस जगह पे भी हैं, और अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में यही कह दें अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तो ये बहुत बड़ा एक अजर रखता है। और अपने जिस जगह पे भी बैठे हैं वहीं से भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज सलाम पेश करें, तो उनका अजर वही होगा कि जो आज ज़ायरीन करबला में मौजूद हैं, और अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी वो आ चुके हैं, जो अभी नहीं शामिल हाल हो चुके वो कोशिश करें करबला की बारगाह में बार बार आने की।
तौफीक हो इंशाअल्लाह। बिल्कुल हम प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रोग्राम का अख्ताम ताजील फरज दुआ ताजील फरज हजरत मौलाना साहिब आसिफ ज़मान के साथ करेंगे। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियका अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफिज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा फतुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़रीन जो है वो अरबईन का दिन है और रोज़े अरबईन की पहली ट्रांसमिशन यहाँ से जारी बसारी हुई आपकी खिदमत में लाइव दी गई। हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमको मौका मिलता है, इंटरनेट साथ देता है तो जो है वो उसकी टीवी के ऊपर इसकी हम हमारी नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन है वो यूके टाइम से 4 से 6 होगी और इसके अलावा भी जो फुटेज होंगी वो हम जो है वो मुतवातिर आपकी खिदमत में भेजते रहेंगे।